Good morning UPSC study partners. Today we are going to read Making of Constitution. I'm sure you have watched the last two videos that was very much needed to understand polity, historical underpinnings and the fundamentals of Constitution. Now we are going to learn Making of Constitution. I hope you will enjoy as much as I am enjoying. A pen and paper and sit carefully with the Making of Constitution. So we will read some timelines and what things happen when, so we can get connected. Just like the idea of constitutional assembly was implicit in the demand for स्वराज, और वो कब किया था 1906 में। 1934 में जो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली पुट किया गया एम एन रॉय के द्वारा, और उसी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के आइडिया को for the very first time, INC demanded a constitutional assembly. Officially demanded a constitutional assembly. The demand of constitutional assembly was accepted in principle. अगस्त constitutional assembly की 1942 जो क्रिस proposal था that accepted demanded of constitutional assembly, but Muslim League rejected this proposal. Got it? And then 1946 में cabinet mission put forth a scheme of constitutional assembly which more or less satisfy the Muslim League. Then finally in 1946 constitutional assembly was constituted under the cabinet mission plan. This was a brief idea. Then after 9th December 1946, in this the first meeting of constitutional assembly was presided by Dr. Sachinanand Sinha. ये oldest member थे, that's why, and based on फ्रेंच प्रैक्टिस, जो फ्रेंच में एक प्रैक्टिस है कि ओल्ड है उसे ही वहाँ का मुखिया बनाया जाता था, तो सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया। और ये फर्स्ट इंडियन थे जो कि ब्रिटिश कैबिनेट में नॉमिनेट किए गए। ओके, एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड एच.सी. मुखर्जी वर इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट रेस्पेक्टिवली। ओके, एंड देन 13 दिसंबर 1946 इसमें क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू ने देन आफ्टर 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया ऑफ 1947 एंड चेंजेस किए गए। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज मेड फुल्ली सोवरेन बॉडी। अब ये फुली सोवरेन बॉडी थी, इस पर किसी का कंट्रोल, एक्सटर्नल और इंटरनल कंट्रोल नहीं था। इट इज़ ऑल्सो बिकम लेजिस्लेटिव बॉडी चेयर्ड बाई जी.बी. महाबलंकर। फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया to 299 as Muslim League members hailing from areas including Pakistan withdrew। 20 नवंबर 1940 जो मोशन ड्राफ्ट किया गया था, एंड फाइनली इन 26 जनवरी 1950 इट वॉज चूजन एज द डेट ऑफ कमेंसमेंट। रीज़न क्या था कि जो पूर्ण स्वराज डे था वो मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को आफ्टर लाहौर सेशन, और तब एक इतना खुशी का माहौल था। उसी टाइम इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने लोगों से बात कही थी कि जब भी हमें आज़ादी मिलेगी तो ये दिन याद रखा जाएगा 26 जनवरी 1930। तो जनवरी उठाई गई एज अ रिपब्लिक डे, जो कि आज हम मनाते हैं। सो ये था मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बिकम बेसिस फॉर द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन दिस द फर्स्ट इज प्रोक्लेम्ड इंडिया एज इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक। ओके, इसमें इंडिया को इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक, ऑल पावर्स एंड अथॉरिटी डिराइव्ड फ्रॉम पीपल, जस्टिस से मिलेगी, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी होगी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन, एक्शन subject to law and public morality, educate, safeguard for minorities, backward and tribal areas, depressed and other backward classes, promotion of peace and welfare. Got it? These were the objective resolution which were passed by the Jawaharlal Nehru। और इन्होंने ही ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस थे पीएस के बेसिस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया कि ये जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं ये इंक्लूडेड होने चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और यही ऑब्जेक्टिव्स हमारा प्रीएम्बल शो करता है। गॉट इट? नाउ वी विल लर्न
Composition of Constituent Assembly. Total strength 389 of these 296 seats were allocated to British India, 93 seats to princely states. Partly nominated and partially elected, representatives of princely states were nominated by the head of princely states, whereas representatives of British India were elected indirectly by the method of proportional representative by means of single transferable vote. Some related facts. It comprised the representatives of all sections of Indian society that include Hindus, Muslims, Sikh, Parsis, along Anglo-Indians. Or one of the important fact, Mahatma Gandhi was not member of the Constituent Assembly. Okay, we will see this. इसमें क्या है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में तो चलो हम मेजर कमेटी देखते हैं और मेजर कमेटी इम्पोर्टेंट है तो आपको याद भी रखने हैं। जो कमेटी यूनियन पावर्स की थी वो किसने हैंड ओवर की, किसको हैंड ओवर की? जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके पास थी? जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन सरदार जी पटेल। ड्राफ्टिंग डॉक्टर BR जी अम्बेडकर। एडवाइजरी सरदार जी पटेल। रूल्स ऑफ प्रोसीजर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। स्टेट्स किसके पास थे? जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे आप कर सकते हो सरदार पटेल, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, प्रोविंशियल, ठीक है, प्रोविंशियल और जो स्टेट थी वो जवाहरलाल नेहरू के पास। स्टीयरिंग कमेटी किसके पास थी? ये थी अपने फर्स्ट प्रेसिडेंट के पास, जो कि थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तो रही नॉर्मल कमेटीज़, ठीक है, जिन्हें याद रखना है। इनके साथ साथ आप हेल्थ की भी देख सकते हो और फाइनेंस वगैरह, और जो माइनर है लेबर वगैरह पूछी जाती है। तो जो माइनर है वो 15 हैं, बट वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो उनमें से कुछ ये हैं: फाइनेंस एंड स्टाफ, लिंग्विस्टिक, प्रोविंसेस कमीशन। नाउ दिस is one of the important image you are seeing here. Younger, A.K. Iyer, Dr. K.M. मुंशी, S.M. सादुल्ला, N.M. राव, जिन्होंने रिप्लेस किया था B.L. मित्तर को, T.T. कृष्णमचारी, इन्होंने D.P. खेतान को रिप्लेस किया था। और नाउ वी विल लर्न एडवाइजरी कमेटी। गॉट इट? तो जो फंडामेंटल राइट थे, J.P. कृपलानी, माइनॉरिटी, H.C. मुखर्जी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड आसाम एक्सक्लूडेड, पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज, वो की गई थी G.D. बरदोली को। एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन आसाम, वो की गई थी A.V. टक्कर को। क्रिटिसिज्म क्या कहते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो वो बताए गए, आपको ध्यान रखना है। रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, गॉट इट, एज इट्स मेंबर्स वर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली, और उन्हें हेड कर रहे हैं। ये तो फर्स्ट था कि ये कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि ये इलेक्टेड नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, इन्हें नॉमिनेट किया गया है, या फिर ये पार्शली इलेक्टेड इन द सेंस कि कुछ ही लोगों को परमिशन थी वोटिंग की, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है या फिर जो इनके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जिसमें वीमेन, चिल्ड्रंस और सोसाइटी के अदर पुअर सेक्शंस इंक्लूडेड नहीं थे। एंड द सेकेंड वन इज़ नॉट अ सोवरेन बॉडी नहीं है, बिकॉज इट वॉज क्रिएटेड बाय द प्रपोजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल से क्रिएट की गई थी। यू गॉट इट? अगस्त ऑफर में इसे एक्सेप्ट किया गया था। एंड दैट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी। डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, ये एक पार्टी के द्वारा डोमिनेटेड की गई थी, इसलिए ये क्रिटिसिज्म में आ जाता है। डोमिनेटेड बाय लॉयर्स, पॉलिटिशियंस। आप अगर देखो तो जो भी कांग्रेस के मेंबर्स थे कहीं ना कहीं लॉयर्स ही थे। महात्मा गांधी जी लॉयर, जवाहरलाल नेहरू लॉयर, एंड आप मेजर उनमें से मेंबर्स के नाम उठाइए। ऐसा बोला जाता है कि जो लॉयर्स हैं उन्होंने ही हमारे देश को आज़ादी दिलाई है। डोमिनेटेड बाय हिंदू कम्युनिटी। Okay, these were the criticism of Constituent Assembly.